মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে লাৰ্ণ ইন আছামিছত নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ হিন্দী কিতাপ আলোক বা কোৱানৰ 12 নম্বৰ চেপ্টাৰ মুৰজায়া ফুল নামৰ চেপ্টাৰটিৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ কেইটা। ঠিক আছে, মুৰজায়া ফুল এইটো এটা কবিতা হয় আৰু কবিতাটোৰ লিখক হৈছে মহাদেৱী বৰ্মা। ঠিক আছে, তো মহাদেৱী বৰ্মাৰ বিষয়ে তোমালোকক কিতাপত দিছে, তো তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা 3-4 বাৰ মান। ওকে, মুৰজায়া ফুল এইটো এটা কবিতা হয় যিহেতু, গতিকে তোমালোকে কবিতাটো পঢ়িবা 4-5 বাৰ মান। ঠিক আছে, আৰু পঢ়ি একেবাৰে মুখস্থ কৰি পেলাবা। একেবাৰে সৰু এটা কবিতা হয় আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কবিতা হয়। ঠিক আছে, তো তোমালোকে কবিতাটো পঢ়িবা। ওকে, এই কবিতাটোত মানে ফুল এটা কলিৰ পৰা একেবাৰে বুঢ়া হৈ একেবাৰে মাটিত সৰি পৰালৈকে গোটেইখিনিক মানে বৰ্ণনা কৰিছে লিখকে। ঠিক আছে, মানে ফুলৰ জৰিয়তে মানুহৰ জীৱনৰ কথা কৈছে আৰু। ঠিক আছে, মানুহ এজন সৰু থাকোঁতে কেঁচুৱা থাকোঁতে কেনেকৈ সকলোৱে মৰম কৰে আদৰ কৰে। ঠিক আছে, ডেকা অৱস্থাত কেনেকৈ সকলোৱে মৰম কৰে আদৰ কৰে সন্মান কৰে, আৰু ডাঙৰ হৈ গ'লে যে সকলোৱে অৱহেলা কৰে, মানে বুঢ়া হৈ গ'লে, সেই কথাটো তোমালোকক ইয়াত মানে লিখকে বুজাব বিচাৰিছে কবিতাটোৰ জৰিয়তে, মুৰজায়া ফুল নামৰ কবিতাটোৰ জৰিয়তে। ঠিক আছে, চ' তোমালোকে কবিতাটো ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা। ওকে, তেতিয়াহ'লে আমি কুৱেশ্যন আনসাৰ কেইটা আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে তোমালোকক গোটেইকেইটা চেপ্টাৰৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমে তোমালোকক কেইটামান MCQ দিছে। ঠিক আছে, তোমালোকক গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ আৰম্ভণিত MCQ দিছে। ঠিক আছে, চ' একেবাৰে ইজি হয় MCQ কেইটা, তোমালোকে কবিতাটো এবাৰ পঢ়িলেই হ'ল। ওকে, তো প্ৰথমটো মানে কবি পৰিচয়ৰ পৰা দিছে। ঠিক আছে, মহাদেৱী বৰ্মাৰ ওপৰত প্ৰথম প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে, মানে প্ৰথমে MCQটো দিছে। তো চোৱাচোন কি কৈছে ইয়াত তোমালোকক কৈছে কবিয়ত্ৰী মহাদেৱী বৰ্মা কি তুলনা কি জাতি হে, মানে কবিয়ত্ৰী মহাদেৱী বৰ্মাৰ তুলনা কাৰ লগত কৰা হয়। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিছে, সুভদ্ৰা কুমাৰী চৌহান के साथ, मीराबाई के साथ, उषा देवी मित्रा के साथ, मन्नू भंडारी के साथ। तो यहाँ पर শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব मीराबाई के साथ। ঠিক আছে, কবিয়ত্ৰী মহাদেৱী বৰ্মা কি তুলনা কি জাতি হে, मीराबाई के साथ। ঠিক আছে, আৰু मीराबाई কেনেকুৱা ৰাইটাৰ আছিলে মেবি তোমালোকে জানা ন, তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ খ অপশ্যনটো লিখি দিবা मीराबाई के साथ। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो होइसे कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था उनका जन्म। महादेवी कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तारमाने कवियत्री महादेवी वर्मा जन्म कत हुइছিলে, 4টা ऑप्शन दिसे, गाजियाबाद में, हैदराबाद में, फैजाबाद में, फर्रुखाबाद में। तो इसमें से जो 4th ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, फर्रुखाबाद में। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन शुद्ध है फर्रुखाबाद में। ओके, नेक्स्ट, महादेवी वर्मा की माता का नाम क्या था। महादेवी वर्मा मातृ नाम বা মাৰ নাম কি আছিলে। ঠিক আছে, প্ৰথম 3টা দেখোন ৰাইটাৰৰ ওপৰতে সুধিছে। ঠিক আছে, মহাদেৱী বৰ্মাৰ ওপৰতে সুধিছে। তো চোৱা ইয়াত 4টা অপশ্যন আছে, हेमरानी शर्मा, पद्मावती शर्मा, फूलोमती शर्मा, कलावती शर्मा। सो सही आंसर हो जाएगा हेमरानी शर्मा। ठीक है, तो इसको आंसर में इनपुट कर देना, ऐसे लिख देना हेमरानी शर्मा। एक्चुअली शर्मा নহয় बर्मा হয়। ঠিক আছে, मैं शर्मा पढ़ी आছো, बर्मा হয়, हेमरानी बर्मा। ठीक আছে, तो नेक्स्ट चुआ এইটো কবিতাৰ পৰা দিছে, हाइस्ता करता था देश अंक में तुझको पवन, खिलाता हिलाता सहलाता सुलाता। तो ইয়াত 4টা অপশ্যন দিছে, শুদ্ধটো হৈ যাব खिलाता। ঠিক আছে, हाइस्ता करता था खिलाता अंक में तुझको पवन, তো ইয়াত হৈ যাব खिलाता। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে 5 নম্বৰ তোমালোকক দিছে, यत्न मालिका रहा देश से भरता तुझे। तो यहाँ बैठेगा आनंद। ठीक है, तारमाने यात आनंद बहिब। ओके, यत्न मालिका रहा आनंद से भरता तुझे। ठीक है, तो यह 4 ऑप्शन दिया गया है ना, प्यार, आनंद, सुख, धीरे। तो यात आनंद बहाबा तुमलोके। ठीक है, यत्न मालिका रहा आनंद से भरता तुझे। ओके, नेक्स्ट আছে 6 নম্বৰ তোমালোকক দিছে, कर्तार ने धरती पर सबको कैसा बनाया। कर्तार মানে হৈছে ভগৱান অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ। ঈশ্বৰে পৃথিৱীত সকলোকে কেনেকুৱা বনাইছে।
सुंदर, त्यागमय, स्वार्थमय, निर्दय। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, स्वार्थमय। ठीक है, कर्ता ने अर्थात भगवान ने धरती पर सबको स्वार्थमय बनाया है। ठीक है, तो এতিয়া ইয়াত চোৱা তোমালোকক দিছে হা या नहीं में उत्तर दो। ঠিক আছে, তো ইয়াত মানে শুদ্ধ অশুদ্ধ লিখিব লাগে। শুদ্ধ হ'লে হা আৰু অশুদ্ধ হ'লে नहीं বুলি লিখিব লাগে। ঠিক আছে, তো চোৱা ছায়াবাদী कवियत्री महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवियत्री के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवियत्री के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये शुद्ध है। ओके, नेक्स्ट है महादेवी वर्मा के पिता माता उदार विचार वाले नहीं थे। जेहेतु नहीं शब्द तो लगा दी गति के नहीं हो যাব। तारमाने यार अर्थ हो महादेवी वर्मा के पिता माता उदार दिल वाले थे बा विचार वाले थे, पर जेहेतु कैसे नहीं थे इसका मतलब क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, महादेवी वर्मा के पिता माता उदार विचार वाले थे। ठीक है, तो तुम्हारे नहीं बोली लिखिए अर्थात अशुद्ध। नेक्स्ट तीनित है महादेवी वर्मा ने जीवन भर शिक्षा और साहित्य की साधना की। महादेवी वर्माय गोटे जीवन शिक्षा और साहित्य साधना कर कैसे। यस, दिस इज ट्रू, ये शुद्ध है, गति के हाँ बोली लिखा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है चारि तुम्हारे दिसे वायु पंखा जल फूल को सुख पहुँचती रहती है, तो यहाँ बैठेगा हाँ, ये सही है। ठीक है, तारपिছত से पाছত तुम्हारे दिसे मुरझाए फूल की दशा पर संसार को दुख नहीं होता, शुद्ध है। ठीक है, मुरझाए फूल की दशा पर संसार को दुख नहीं होता, शुद्ध है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। एक नंबर है महादेवी वर्मा की कविताओं में किन के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है, तो तुम्हारे उत्तर लिखा महादेवी वर्मा की कविताओं में सर्वव्यापी परम सत्ता अर्थात ईश्वर के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है। ठीक है, ये धुनिया तुम्हारे लिखा। नेक्स्ट है 2 नंबर तुम्हारे दिसे महादेवी वर्मा का विवाह कब हुआ था। महादेवी वर्मार बिया केতিয়া হৈছিলে, उत्तर लिखा महादेवी वर्मा का विवाह तब हुआ जब 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। ठीक है, जेतिया माने तेও केवल क्लास 6 লৈকে পঢ়িছে তেতিয়াই তেখেতৰ বিয়া হৈ গৈছিলে। মানে আগতে মানে কম বয়সতে ছোৱালীবিলাকৰ বিয়া হৈ গৈছিলে। ঠিক আছে, ছোৱালীবিলাকক বিয়া দি দিছিলে, সেইকাৰণে মানে महादेवी वर्माको क्लास 6 पास करार पिछते मैंने बिया दी दिছিলে। ओके, नेक्स्ट है महादेवी वर्मा माने आगते माने बाल्य विवाह सिवा এইবিলাক যে আইনগতভাৱে অপৰাধ তেনেকুৱা মানে আইনেই নাছিলে কোনো ধৰণৰ। ओके, सो সেইকাৰণে মানে আগৰ মানুহবিলাক সিমান শিক্ষিত নাছিল ন, সেইকাৰণে মানে তেনেকুৱা আছিল। तो এতিয়া চোৱা 3 दिसे महादेवी वर्मा ने किस रूप में अपने कर्म जीवन का श्री गणेश किया था। कर्म जीवन माने कि केरियर, কোনটো रूपे केरियर आरम्भणि কৰিছিল। श्री गणेश करना मीन्स आरंभ करना। ठीक है, तो चुआ महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में आचार्य के रूप में अपने कर्म जीवन का श्री गणेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम दिसे फूल कौन सा कार्य करते हुए भी हर्षाता रहता है, तो लिखा फूल अपना सर्वस्व अर्थात मधु सुंदरता सुगंध आदि दान करते हुए भी हर्षाता रहता है। ओके, तो इसके बाद तुम लोगों को दिया गया है कि भ्रमर फूल पर क्यों मंडराने लगते हैं। भ्रमर क्यों अर्थात भुमुरा क्यों फूलों ऊपर परि थाके बा फूलों ऊपर क्यों पड़े, तेनेकुआ माने क्वेश्चनটো है। तो लिखिबा भ्रमर फूल पर मधु रस प्राण करने के लिए मंडराने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
অতি সংক্ষিপ্ত उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में ঠিক আছে তোমালোকে 25 শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ দিছে একেবাৰে ইজি হয় ন তোমালোকে কবিতাটো পঢ়ি মানে বুজি ললেই হ'ল 3-4 বাৰ মান পঢ়িবা আৰু ইউটিউবত এক্সপ্লেনেশনৰ ভিডিও আছে এইবিলাক চাবা দেন তোমালোকৰ এইবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে মিনিংটো যেতিয়া বুজি পাবা আৰু কবিতাটো যেতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকিব আৰু কবি পৰিচয়খিনি যেতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকিব তেতিয়া তোমালোকৰ ইকুৱেশ্যন আনসাৰবিলাক মনত ৰখা একেবাৰে ইজি হৈ যাব ওকে এবাৰ দুবাৰ পঢ়িলে মনত ৰখি যাব তোমালোকে এক্সামত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এতিয়া হেৰি याद चो किन गुणों के कारण महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों को विशेष प्रिय रही है तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी की काव्य रचनाओं में सर्वव्यापी परम सत्ता के प्रति विरहानुभूति और व्यक्तिगत दुख वेदना की अभिव्यक्ति के साथ साथ लोक कल्याणकारी करुणा भाव भी निहित है जिसके कारण उनकी काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों को विशेष प्रिय रही है ठीक है सो इस तरह तुम लोग इसका आंसर लिख देना ठीक है सो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं क्या क्या है किस काव्य संकलन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था কি কৈছে মহাদেৱী বৰ্মা কি মুখ্য কাব্য ৰচনা क्या क्या है ঠিক আছে মহাদেৱী বৰ্মাৰ মুখ্য কাব্য ৰচনা কি হয় কিস কাব্য সংকলন পৰ কোনটো কাব্য সংকলনৰ বাবে তেওঁক জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে তো লিখিবলৈ কৈছে সো লেটস ৰিড দ্য আনসাৰ তো আনসাৰটো তোমালোকে এডো লিখিব লাগিব মহাদেৱী বৰ্মা जी की प्रमुख काव्य रचनाएं है निहार रश्मि निजरा साइंध गीत दीपशिखा और यामा उन्हें यामा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था ठीक है सो इस तरह आंसर लिख लेना तो ये चुआ कि कैसे फूल किस स्थिति में धारा पर पड़ा हुआ है ठीक है फूल कोनटो स्थितित बा कोनटो परिस्थितित धरतीत बा भूमित बा माटित परि থাকে तो यार उत्तर लिखिबा फूल शुष्क मीन्स हुकान जेतिया हुकाई जाय तेतिया सुखा सुगंधहीन जेतिया गंध नाথাকে বা गंधहीन हो जाए और कोमलता विहीन स्थिति में धारा पर पड़ा रहता है ठीक है तो ये लिख लो आंसर तो नेक्स्ट साइड तुम्हारे दिसे खिले फूल और मुरझाए फूल के साथ पवन के व्यवहार में कौन सा अंतर दिखने को मिलता है तो तुम्हारे लिखिबा खिले फूल को पवन अपनी गोद में बैठाकर उसे प्यार करता है हंसाता और खिलाता है परंतु मुरझाए फूल को पवन अपने तीव्र झोंकों से धरती पर गिरा देता है अतः खिले फूल और मुरझाए फूल के साथ पवन के व्यवहार में यह अंतर देखने को मिलता है ठीक है अर्थात जेतिया फूल एटा मेल खाई থাকে তেতিয়া ফুলটো সকলোৱে ৰেসপেক্ট কৰে মৰম কৰে সকলোৱে মানে ভাল দৃষ্টিৰে চায় আৰু যেতিয়া একেবাৰে मुरझाई जाए अर्थात एकेबारे जेतिया भूमित परि থাকে तेतिया कोनेও মানে हेतु ध्यान नाराखे और कोनेও दुख प्रकाश नकरे ठीक है सो ये लिखिबा तुम्हारे नेक्स्ट আছে खिले फूल और मुरझाए फूल के प्रति भोरे के व्यवहार क्या भिन्न भिन्न होते हैं ऑब्वियसली भिन्न भिन्न होबो कारण जेतिया फूल এটা ফুলি থাকে तेतिया तात मौ থাকে আৰু সেই मौ खाবৰ কাৰণে মৌমাখি পৰে ভুমুৰা পৰে তাত আৰু যেতিয়া শুকাই যায় ফুল এটা তেতিয়া হেতুত মৌ নাথাকে তেতিয়া অবিয়াসলি তাত মৌমাখি না যায় তো সকলো বস্তুৱেই স্বাৰ্থপৰ হয় নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে কাম কৰে ঠিক আছে বা কাৰবাক মৰম কৰে সকলোৱে মানে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে যিকোনো কাম करे सो हेतु मैंने राइटेरियात बुझाव विचारिছে तो तुम्हारे उत्तर लिखिबा जब फूल खिला रहता है तो लालची भोरे मधुर रस का पान करने हेतु खिले फूल के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं परंतु जैसे ही फूल मुरझा जाते हैं वैसे ही लालची भोरे उसके पास आते तक नहीं और उसे देखते तक नहीं है अतः खिले फूल और मुरझाए फूल के प्रति भोरे के व्यवहार में हमें वैसे भिन्नता देखने को मिलती है ठीक है धुनियाকৈ लिखि लबा ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকক দিছে संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में ठीक है तुम्हारे उत्तरबिलाक संक्षेपत दिबोलै दिसे 50 टा मान शब्दर भितरत चोৱা
महादेवी वर्मा की साहित्यिक देन का उल्लेख करो। महादेवी वर्मार साहित्यिक अवदाনৰ বিষয়ে তোমালোকক उल्लेख কৰিবলৈ দিছে। तो তোমালোকে एडो लिखिबा महादेवी वर्मा जी ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निजरा, सांदोगीत, दीपशिखा और यामा। उन्हें यामा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये धुनियाকৈ তোমালোকে क्वेश्चन आंसर लिखि पेलाबा और तल तल আছে এইখিনি লিখিব লাগিব। उनकी गद्य रचनाओं में स्मृति और रेखाएं अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़िया और पथ के साथ ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये धुनियाকৈ তোমালোকে লিখিবা आंसरটো। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चुआ कि आसे। नेक्स्ट 2 नंबर तुम्हारे दिसे खिले फूल के प्रति किस प्रकार सब आकर्षित होते हैं पठित कविता के आधार पर वर्णन करो। ठीक है, फुली थका फुल एटार प्रति सकलो केनेকৈ आकर्षित सकलो लोके केनेকৈ आकर्षित হয় हेतु तुम्हालोকক पाठत दिया कविताটোৰ ওপৰত মানে मिल रखाई लिखिবলৈ কৈছে वर्णना কৰিবলৈ दिसे। ठीक है, सो तुम्हालोक एडो लिखिबा खिले फूल के प्रति सब आकर्षित होते हैं जैसे कि हम इस कविता में देख सकते हैं कि खिले फूल को पवन अपनी गोद में लेकर प्यार करता है, हंसाता है। लालची भ्रमर मधु रसपान करने के लिए खिले फूल के इर्द गिर्द मंडराता है। चंद्र की निर्मल किरणें फूल को हंसाती है। उसकी बूंदे मोतियों की माला बन खिले फूल का श्रृंगार करती है और माली का मन भी खिले फूल को देखकर आनंद से बढ़ उठता है। ठीक है, तो ये धुनियाকৈ তোমালোকে उत्तरটো लिखिबा। एटे 3 तुम्हालोকক दिसे जे पठित कविता के आधार पर मुरझाए फूल के साथ किए जाने वाले बर्ताव का उल्लेख करो। ठीक है, तो तुम्हालोके यार उत्तर लिखिबा जब फूल मुरझा जाता है पवन अपने तीव्र झोंकों से उसे धरती पर गिरा देता है। लालची भौरे भी उसके आसपास नहीं मंडराते। वृक्ष भी फूल को खोकर अश्रु अर्थात आंसू नहीं बहाता। अतः मुरझाए फूल के प्रति किसी का कोई आकर्षण नहीं रहता है और उसे खोकर किसी को दुख या तकलीफ भी नहीं होती है। ठीक है, सो ये धुनियाকৈ लिखि लबा। তাৰপিছত তোমালোকক 4 নম্বৰ दिसे जे पठित कविता के आधार पर दानी सुमन की भूमिका पर प्रकाश डालो। ओके, गुड क्वेश्चन। तो तुम्हारे आंसर लिखिबा जे कवियत्री महादेवी वर्मा कविता में दानी सुमन के बारे में बताते हुए कहती है कि दानी सुमन इस संसार में अपना सर्वस्व दान करके भी हर्षाता रहता है और कली से जब पूर्ण रूप में खिलकर फूल बन जाता है तब निस्वार्थ भाव से अपनी सुगंध, कोमलता और सुंदरता से सबको प्रसन्न करता है और अपनी रंगीन पंखुड़ियों से लोगों के हृदय को आनंद प्रदान करता है। ठीक है, तो ये धुनियाকৈ लिखि लबा তোমালোকে। नेक्स्ट तुम्हालोকক दिसे सम्यक उत्तरটো लगभग 6 शब्द में तुम्हालोকক 100টা शब्दर ভিতৰত उत्तर दिবলৈ दिছে। ठीक है, तो चुआ प्रथम प्रश्नটো कि कवियत्री महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। ठीक है, कवियत्री महादेवी वर्मा साहित्यिक परिचय प्रस्तुत কৰিবলৈ কৈছে। तो तुम्हालोকে एडो लिखिबा महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में 7 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्हें आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत सायावादी काव्यधारा की 4 प्रमुख विभूतियों में अन्यतम स्थान प्राप्त है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निजरा, सांदोगीत, दीपशिखा और यामा। उन्हें यामा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़िया और पथ के साथ ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ीबोली है जो कोमलता, मधुरता,
योग्यता आदि गुणों से संपन्न है। अतः 1987 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो ये धुनियाকৈ তোমালোকে লিখি ল'বা, সাহিত্যিক পৰিচয় দিবা लेखकर। नेक्स्ट আছে 2 नंबर तुम्हारे दिसे मुरझाया फूल कविता के माध्यम से कवित्री ने मानव जीवन के संदर्भ में क्या संदेश दिया है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा मुरझाया फूल शीर्षक कविता में फूल के कली से खिलकर फूल बनने और मुरझाए भूमि पर गिरने तक का आकर्षक वर्णन किया गया है। फूल खिलकर अपना मधु और सौरभ निस्वार्थ भाव से सबको दान करता हुआ भी हर्षाता रहता है। भोरे मधुपान करने हेतु उसके आसपास मंडराते हैं। फूल के खिले रहने पर पवन भी उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार करता है। चंद्र की निर्मल किरणें भी उसे हंसाती है। उसकी बूंदें भी फूल का श्रृंगार करती है, परंतु जैसे ही फूल मुरझा जाता है वैसे ही पवन अपने तीव्र झोंकों से उसे धरती पर गिरा देता है। भूरे उसके पास नहीं आते और वृक्ष भी उसे खोकर शौक नहीं मनाता। अतः अंत में फूल धरती पर शुष्क, बेरोस और सुगंधहीन पड़ा रहता है। ठीक है, ये धुनियाকৈ आंसर लिखि पेलाबा तुम्हारे। नेक्स्ट আছে তিনি তোমালোকক দিছে मुरझाया फूल कविता के माध्यम से कवित्री ने मानव जीवन के संदर्भ में क्या संदेश दिया है। ठीक है, तो तुम्हारे यार उत्तर लिखिबा जे मुरझाया फूल कविता के माध्यम से कवित्री ने मानव जीवन के संदर्भ में यह संदेश दिया है कि फूल की तरह मानव जीवन भी क्षणभंगुर है। जिस प्रकार फूल निस्वार्थ भाव से अपनी मधु, सुगंध, सुंदरता सबको दान करते हुए भी हर्षाता है, ठीक उसी प्रकार मानव को भी अच्छे कर्म करते हुए निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते हुए खुश रहना चाहिए। साथ ही यह फूल के साथ किए गए व्यवहार के द्वारा संसार की स्वार्थपरता का भी परिचय दिया गया है। ठीक है, ये धुनियाকৈ তোমালোকে आंसर लिखिबा। छात्र छात्रीসকল এতিয়া চাৰিত চোৱা, চাৰি তোমালোকক দিছে पठित कविता के आधार पर फूल के जीवन और मानव जीवन की तुलना करो। ठीक है, तो तुम्हारे उत्तर लिखिबा मानव जीवन फूल के जीवन जैसा है। बाल्यकाल में जैसे फूल को पवन, भोरे, चांदनी और माली प्यार से संवारते हैं, वैसे ही बच्चे को सब स्नेह और देखभाल देते हैं। युवा होने पर उसका आदर होता है, पर बूढ़ा होने पर फूल की तरह उपेक्षित और अकेला रह जाता है। ठीक है, तो ये धुनियाকৈ তোমালোকে उत्तरটো लिखि পেলাবা। তাৰপিছত তোমালোকক এড দিছে যে प्रसंग सहित व्याख्या करो लगभग 100 शब्द में। प्रसंग माने प्रसंगर सहित तुम्हारोक व्याख्या কৰিবলৈ দিছে 100টামান শব্দৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, তো চোৱা প্ৰথমে তোমালোকক কি দিছে। তোমালোকক কৈছে स्निग्ध किरणे चंद्र की सिंगारती थी सर्वदा। एकेटारे माने बाकी जिखिनि आछे, ठीक है, सेखिनि बुझाइছে। उदाहरणस्वरूपे स्निग्ध किरणे चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, उस मुक्ता जाल से सिंगारती थी सर्वदा। ठीक है, तो মাজৰখিনিক এই দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে। তোমালোকে প্ৰথমে প্ৰসংগ লিখিবা, তাৰপিছত प्रथमे सन्दर्भ, তাৰপিছত प्रसंग, তাৰপিছত व्याख्याটো লিখিবা। একেবাৰে শৰ্টকৈ লিখি অনা হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে। ঠিক আছে, চোৱা प्रस्तुत पंक्तियाँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मुरझाया फूल से लिया गया है। তাৰপিছত प्रसंग लिखिबा। इस पंक्तियों में कवित्री ने खिले फूल के प्रति चंद्र और उसके व्यवहार का वर्णन किया है। ठीक है, তাৰপিছত তোমালোকে व्याख्या लिखिबा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती है कि खिले फूल को चंद्र की किरणें सदैव हंसाती रहती है और उसकी बूंदें मोतियों का जाल बनकर सदैव उसका श्रृंगार करती है। ठीक है, তাৰপিছত চোৱা কি দিছে। तो
তো 2 নম্বৰ তোমালোকক দিছে कर रहा अटखेलिया ... या कभी क्या ध्यान में তাৰমানে ইয়াত তোমালোকক দ্বাৰা এইখিনি বুজাইছে যে कर रहा अटखेलिया इतना सदा उद्यान में अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में ঠিক আছে তো প্ৰথমে তোমালোকে প্ৰসংগখিনি লিখিবা মানে সন্দৰ্ভ লিখিবা যে प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मुरझाया फूल से लिया गया है ঠিক আছে এইখিনি লিখিলে তোমালোকে 1 মাৰ্ক পাই যাবা ঠিক আছে তাৰ পিছত এইখিনি লিখিলে আৰু 1 মাৰ্ক পাই যাবা এইখিনি প্ৰসংগখিনি যে यहाँ कवित्री ने फूल के अटखेलिया और अंतिम दशा की और संकेत किया है ठीक है তাৰ পিছত তোমালোকে व्याख्या लिखिबा प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती है कि फूल जब खिला रहता है तो पूरे उद्यान में अपने चुलबुलेपन मतवालेपन से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है परंतु तब उसे अपनी अंतिम दशा का ख्याल नहीं आता है अर्थात मुरझाकर धरती पर सूखा गंधहीन अवस्था में पड़ा रहेगा यह उसे ख्याल में नहीं आता है ठीक है तो जो लिखिबा তাৰপিছত তোমালোকক দিছে যে मत व्यतीत हो पुष्प यहाँ करतार ने ठीक है तो 1 सेकेंड रखा এইখিনি কোনখিনি হয় চেক কৰি আছো মই কিতাপত 1 सेकेंड यस पाई गलो मत व्यतीत हो पुष्प किसको सुख दिया संसार ने स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने ठीक है तो তোমালোকে এডৰ লিখিবা প্ৰথমে সন্দৰ্ভখিনি যে प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मुरझाया फूल से लिया गया है গোটেইকেইটাৰ সন্দৰ্ভখিনি সেমে লিখিবা একে এক্সাক্ট সেম হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত প্ৰসংগ লিখিবা যে यहाँ कवित्री ने मुरझाए फूल को हौसला प्रदान करते हुए संसार की सच्चाई का वर्णन किया है ठीक है তাৰ পিছত व्याख्या लिखिबा তোমালোকে যে प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मुरझाए फूल को हिम्मत हौसला प्रदान करते हुए उसे सुरक्षित होने को कहती है यह मुरझाए फूल को संसार की स्वार्थपरता के बारे में बताते हुए कहती है कि इस संसार ने किसी को सुख नहीं दिया अर्थात यहाँ लोग एक दूसरे की खुशी में खुशी में खुश और सुख में सुखी होने के बजाय जलते हैं यहाँ सभी स्वार्थी है यहाँ कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता यह सृष्टि के रचयिता का ही विधान है ठीक है তাৰ পিছত সাইড তোমালোকক দিছে যে जब न तेरी ही दशा पर हमसे मनुज निस्तार को ठीक है तो एटू एकेबारे शेषरटू हेरि হয় पैराग्राफ হয় जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्तार को ठीक है तो তোমালোকে এডৰ প্ৰথমে সন্দৰ্ভখিনি লিখিবা प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मुरझाया फूल से लिया गया है তাৰ পিছত তোমালোকে প্ৰসংগখিনি লিখিবা यहाँ फूल के द्वारा मनुष्य जीवन के बारे में बताया गया है ठीक है তাৰ পিছত তোমালোকক व्याख्या दिसे प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री फूल को उसके बलिदान का एहसास दिलाते हुए कहती है कि जब फूल ने इस संसार में अपना सर्वस्व दान करके भी उसके इस सूखे मुरझाए गंधहीन दशा पर दुख मनाने वाला या आंसू बहाने वाला कोई नहीं है तो हम जैसे सारहीन मनुष्य की दयनीय दशा पर कौन आंसू बहाएगा ठीक है तो जो लिखि लबा তোমালোকে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে ভাষা এবং ব্যাকৰণ জ্ঞান ঠিক আছে ভাষা এবং ব্যাকৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত তোমালোকক কিছুমান এক্টিভিটি দিছে তো প্ৰথমে তোমালোকক দিছে নিম্নলিখিত मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो এই মুহাৱৰীবিলাকৰ অৰ্থ লিখি বাক্যত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে
तो विथ मीनिंग माने वाक्य बनाबोले दिसे ठीक है। तो चुआ श्री गणेश करना इसका मतलब क्या है आरंभ करा आरंभ करना। आज राज के पिताजी अपनी दुकान का श्री गणेश करेंगे ठीक है। আজি राजर देउताई तेलोको दुकान आरम्भणि करिब ठीक है। आँखों का तारा माने कि बहुत प्यारा माने बहुत मरमर माने ठीक है। मैं अपनी माता पिता की आँखों का तारा हूँ ठीक है। मैं मोर मा देउतार बहुत मरमर ठीक है। 9-11 होना माने भाग जाना ठीक है। राजू ग्लास तोड़कर घर से 9-11 हो गया। राजू ग्लास भांगी घर पर पलाई गल माने गुसी गल। हवा से बातें करना अर्थात बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करना तारमाने बहुत तेज दौड़ना तारमाने खूब तीव्र वेगत दौड़ा ओके। खेल के मैदान में सुरेश अपने प्रतिद्वंदी के सामने हवा से बातें करने लगा ठीक है। तार पिছত तुमालोকক पाছত दिसे अंधे की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा। मोहन अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है ठीक है। तार पिছত আছে 6 लकीर का फकीर होना अर्थात पुराने विचारों का होना। आज भी अनेक पढ़े लिखे लोग लकीर के फकीर है ठीक है। তাৰপিছত 2 নম্বৰ তোমালোকক দিছে যে নিম্নাঙ্কিত काव्य पंक्तियों को गद्य रूप में प्रस्तुत करो। এইবিলাকক গদ্য ৰূপত লিখিবলৈ দিছে পদ্য ৰূপত আছে তোমালোকক গদ্য ৰূপত লিখিবলৈ কৈছে ঠিক আছে। তো চোৱা खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकुमल फूल बन लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। तो এইখিনিক যদি গদ্য रूपत लिखा हो तेतियाह'ले এইদৰে लिखिब লাগিব जे जब तुम पूर्ण रूप से सुंदर सुकुमल फूल बन खिल गए तब मधु के लालच हेतु भोरे मंडराने लगे ठीक है। তাৰপিছত खत दिसे एटुर যদি গদ্য रूप लिखा তোমালোকে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব যে जिस पवन ने तुमको अपनी गोद में लेकर प्यार किया था उसी पवन के तीव्र झोंकों ने तुम्हें धरती पर सुला दिया। তাৰপিছত আছে লিঙ্গ निर्धारण करो ठीक है। लिंग निर्णय কৰিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ তলত যে শব্দবিলাকৰ কোনকেইটা পুংলিঙ্গ শব্দ হয় কোনকেইটা স্ত্ৰীলিঙ্গ শব্দ হয় লিখিবলৈ কৈছে ঠিক আছে। তো আছে প্ৰথমে আছে কলি এটু স্ত্ৰীলিঙ্গ শব্দ হয়। নেক্সট আছে শৈশৱ এটু পুংলিঙ্গ শব্দ হয়। ফুল এটু পুংলিঙ্গ শব্দ হয়। কিৰণ স্ত্ৰীলিঙ্গ শব্দ হয়। বায়ু হেৰি হয় স্ত্ৰীলিঙ্গ শব্দ। মালিটো পুংলিঙ্গ শব্দ। মালিনটো স্ত্ৰীলিঙ্গ শব্দ হয় ঠিক আছে। কোমলতা পুংলিঙ্গ ओके। सौरभ पुंगलिंग दशा स्त्रीलिंग। तो जो धुनियाকৈ लिखि পেলাবা তোমালোকে ओके। नेक्स्ट আছে বচন পৰিৱৰ্তন কৰো তলত যেবিলাকৰ বচন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিছে ভোৰা কিনে अटखेलिया ओके झोंके चिड़िया रेखाए भात कली। तो এইদৰে লিখিব লাগিব ভোৰা ভোৰে। ভোৰা পুংলিঙ্গ ভোৰে মানে ভোৰা একবচন ভোৰে বহুবচন ओके। चिड़िया चिड़िया किरणे किरण रेखाए रेखा अटखेलिया अटखेली बात बाते झोंके झोंका ठीक है। তাৰপিছত তোমালোকক দিছে কি লিঙ্গ পৰিৱৰ্তন কৰো লিঙ্গ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিছে কবিত্ৰী প্ৰিয়তম পিতা পুৰুষ प्राचार्य माली देव मोरनी। तो चुआ कवित्री कवि प्राचार्य प्रियतम प्रियतमा माली मालिन पिता माता देव देवी ठीक है। पुरुष स्त्री मोरनी मोर। তাৰপিছত তোমালোকক 6 নম্বৰ দিছে যে কাৰ शब्दांश के पूर्व आ बी प्र उप अप और प्रति उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाओ तथा उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो ठीक है। तो এইবিলাক যে হেৰি আছে উপসৰ্গ আছে এইবিলাক লগ লগাই কি কৰিবলৈ দিছে বাক্য বনাবলৈ দিছে আৰু বাক্যবিলাক প্ৰয়োগ কৰি শব্দ বনাবলৈ দিছে আৰু শব্দবিলাক प्रयोग কৰি বাক্য বনাবলৈ দিছে ঠিক আছে। তো চোৱা आजुकार आकार ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। नेक्स्ट है बी बीजुकार बिकार
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं ठीक है नेक्स्ट से प्रकार प्रजुकार प्रकार आज घर पर कई प्रकार के व्यंजन बने हैं नेक्स्ट से उपजुकार उपकार लोगों पर उपकार करना अच्छी बात है ठीक है नेक्स्ट से अपजुकार अपकार हमें लोगों का अपकार नहीं करना चाहिए नेक्स्ट से प्रतिजुकार प्रतिकार राधिका ने अपने ऊपर हो रहे अन्याय का प्रतिकार किया ठीक है नेक्स्ट से योग्यता विस्तार ओके तो हाव भाव के साथ प्रस्तुत कविता का पाठ करो ठीक है अर्थात उइथ एक्सप्रेशनर सहित ठीक है तुम्हारोक कविताটো पाठ কৰিবলৈ দিছে পঢ়িবলৈ দিছে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়িব লাগিব এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে ओके कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक निम्नोक्त कविता को पढ़ो और अपने गुरुजी की सहायता से इसके संदेश को समझने का प्रयास करो तो ये अर्थ तुम्हारोक लिखिबले कैसे ठीक है तो मैं धुनियाको लिखि दिस तुम्हारे यार चाइसे लिखि लब पारा ठीक है তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকক কি দিছে এইবিলাক তোমালোকে লিখিবা এইবিলাক কিন্তু পৰীক্ষাত নাহে কেতিয়াও ঠিক আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তাৰপিছত কিছুমান শব্দ অৰ্থ দিছে তোমালোকক ঠিক আছে শৈশৱ মানে বচপন সুমন মানে ফুল বা পুষ্প অংক মানে গোদ ঠিক আছে মঞ্জু মানে মনোহৰ সুন্দৰ ঠিক আছে নেক্সট ব্ৰহ্মৰ ভৌৰা স্নিগ্ধ নিৰ্মল ঠিক আছে তো এইবিলাক ইয়াৰ পৰা চাইছে তোমালোকে ধুনিয়াকৈ লিখি পেলাবা আৰু কিতাপটোবিলাক আছে কিতাপৰ পৰা চাইছে তোমালোকে লিখিব পাৰা পঢ়িব পাৰা পঢ়ি মুখস্থ কৰি ঠিক আছে তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে আছিলে ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকক কেনে লাগিল মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু তোমালোকৰ যিটো নেক্সট চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰটোৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি থৈ দিছো ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা সেই চেপ্টাৰটো চাব পাৰিবা হঠাৎ 13 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা ঠিক আছে কোৱেশ্চন আনসাৰবিলাক লিখি ল'ব পাৰিবা তাৰ পৰা আৰু তোমালোকৰ বাকি ক্লাস 9 ৰ মেথ সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স আসামিজ ইংলিশ ओके गोटेकिटा सब्जेक्टर भिडिओ बनाइছিল তো আপলোড কৰি থোৱা আছে ओके গটিকে হেবিলাক চাবৰ কাৰণে তোমালোক প্লেলিষ্ট লৈ যাবা ঠিক আছে প্লেলিষ্ট ভিজিট কৰিবা তো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমান আছিল আজি ভিডিও চাবৰ বাবে তোমালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ